ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں ناظرین گرامی، اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے، بالخصوص چینل کے لنکس کو دوسروں تک شیئر کرنے کی جو بات ہے، اس سلسلے میں ضرور تعاون کیجیے گا۔ لوگوں کو بڑی تعداد میں جوڑیے تاکہ لوگوں کو صحیح سچ حقائق کی خبریں سامنے آ سکیں۔ ناظرین گرامی، ادھر ایران اور اسرائیل میں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، بھارت میں مقامی سطح پر ہونے والے ظلم و ستم کی کہانیاں خبروں کی کسی کونے میں دب کر رہ گئی ہیں یا پھر وہ اپنا دم توڑ رہی ہیں، اور اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو لیٹسٹ نیوز اور بریکنگ نیوز اور لوگوں کا ایک قسم کا رجحان اس خبروں کی جانب بڑھ رہا ہے، تو ہمارے محلے اور گلی میں کیا ہو رہا ہے، گاؤں شہر اور کالونی میں کیا ہو رہا ہے، ملک ریاست اور ضلع اور تعلقے میں کیا ہو رہا ہے، اس سے ہم پوری طرح سے جو ہے یکسر ناواقف ہو چکے ہیں یا اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ جیسے کہ ایران اور اسرائیل امریکہ کے درمیان ہونے والے جنگ کے دوران غازہ پٹی کو ہم بھول گئے۔ وہاں پر ہر دن بمباری ہو رہی ہے، ہر دن معصوموں کو مارا جا رہا ہے، لیکن اس خبر میں یہ خبر دب چکی ہے۔ اب یہ واقعی میں سازش ہے یا پھر ہم لوگوں کی نااہلی، یہ کہا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح بھارت کی بھی صورتحال ہے۔ میں اس وقت 5 ویڈیوز بالخصوص ہمارے مسلم خواتین سے جڑی ہوئی بھارت میں مختلف علاقوں سے آئی ہوئی ایک ایک کر کے آپ کے سامنے، ہماری بے حسی بھی اس میں جھلکے گی، ہماری نااہلی بھی اس میں جھلکے گی، اور ہم پر ہونے والے ظلم و ستم کی کہانی بھی لکھی جائے گی۔ بار بار بتانے کے باوجود ہم کس طرح سے ڈگر سے بھٹک رہے ہیں، وہ کہانی بھی سنائی جائے گی۔ سب سے پہلے میں اس وقت جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سلسلے میں آئی ہوئی ایک کہانی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بارہا اس بات کو بتایا گیا ہے کہ بھگوا لو ٹریپ میں آپ نہ پھنسے۔ آپ کو پھنسانے کی کوششیں ہوں گی، آپ کو عشق اور محبت کے نام پر دھوکہ ملے گا، لیکن اس کے باوجود ہماری نہ مسلم بہنیں سمجھنے کو تیار ہیں، نہ ان کے والدین اس سلسلے میں پوری طرح سے سنجیدہ ہیں کہ اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت کیسی کی جائے۔ موہت کمار ہے اس درندے کا نام۔ اس مسلم لڑکی کے ساتھ گزشتہ 5 سالوں سے رشتے میں تھا۔ اس نے اس لڑکی کا استحصال کیا اور اس کے لیے مختلف قسم کی اس کے پاس بینک میں سیونگ جتنے روپے تھے وہ ختم کروا دیے۔ اس پوری سٹوری کو خود جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وہ متاثرہ مسلم لڑکی نے لکھ کر کے کہانی لکھی ہے کہ ایک موہت کمار جیسا نوجوان کس طرح سے اس کا ایمان کا سودا کیا، کس طرح اس کو جو ہے بلیک میل کیا، شادی کرنے کے جھانسا دے کر کے کس طرح اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائے، یعنی ریپ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب اس سلسلے میں اس سے بات کی گئی تو کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنے گا، تم کو جو کرنا ہے کر لو۔ یہ ایک مسلم لڑکی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی سے آنے والی وہ کہانی ہے ناظرین گرامی۔ اس کے باوجود ہم لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، اور جب کوئی اس سلسلے میں آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں اس طرح سے گھوم رہے ہیں تو واپس انہیں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتی ہیں۔ ایسے میں نے کئی ویڈیوز اس سے پہلے بھی پرائم ٹائم میں دکھایا تھا، لیکن اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آنے والی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ 2 برقع پوش خواتین ہیں، وہ اپنے 2 ہندو دوستوں کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ نوجوانوں نے پکڑ کے پوچھ لیا کہ بھائی اپنے گھر والوں سے اجازت لے لو یا برقع ہٹا دو تاکہ لوگوں کے اندر غلط گمانی نہ ہو۔ آپ برقع بھی پہنیں گی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی گھومیں گی، پھر اس کے بعد دادا گیری بھی کریں گی، اور کوئی پوچھے گا تو مسئلہ کیا ہوگا کہ واپس ان نوجوانوں پر ہی ہوگا۔ جبکہ برقع پوش خواتین غیر مسلموں کے ساتھ جاتے ہیں اور کوئی سرپھرا مسلمان لونڈا وہاں جاتا ہے تو وہ غلطیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اسلام اور مسلمان کو بدنام نہ کرو، برقع نکال کر کے پھینکو اور اپنے من میں جو آئے وہ کرو، لیکن یہ برقع بھی پہنیں گی، غلط کاریوں میں بھی ملوث ہوں گی، تو یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ 2 کہانیاں تھیں۔ بار بار ان لوگوں کے سامنے بات کرنے کے باوجود
ये लोगों को समझ में नहीं आता है, और जब इनके साथ धोखा होता है तो अपने धोखे की कहानियाँ इंस्टाग्राम में लिखना शुरू कर देती हैं। तब उनको याद आता है कि वो मुसलमान हैं, और जब मुसलमान थी, गैरों के साथ घूम रही थी, तो उस वक्त उनको कुछ भी याद नहीं आया, न शरीयत याद आई, न पर्दा, न हया, न कुरान, न उनके वालिदैन की इज़्ज़त। लेकिन जब पकड़ी जाती हैं, उनको धोखा होता है, उनका सब कुछ लूट लिया जाता है, तब उनको समझ में आता है कि हाँ वो मुसलमान हैं। जब ये सब कर रही थी तब भी मुसलमान थी, लेकिन इजाज़त नहीं देता है इस्लाम इस तरह की चीज़ें करने के लिए। इसीलिए जो है इन तमाम चीज़ों को धोखा खाने से पहले, किसी से इसे करने से पहले जो है समझने की ज़रूरत है। हमारी ख़वातीन कहाँ तक जा रही हैं और क्या कुछ हो रहा है, उसकी एक मिसाल अगर और आपको दिखाना चाहता हूँ तो एक और वीडियो हमारी स्क्रीन पर नज़र आएगी, उसको देख लीजिएगा। इस वक्त बुर्का पोश है और वो थिरक रही है, नाच रही है, ठुमके लगा रही है एक हिंदी गाने पर। ये एक स्कूल की कहानी है। बच्चियों को तरबियत के लिए भेजा जाता है, स्कूल में रियाजी सिखाने के लिए, मैथमेटिक्स सिखाने के लिए, अच्छी तरबियत पाने के लिए, एक अच्छा शहरी, एक अच्छा हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान की तरक्यात की जानिब तवज्जो दिलाने के लिए। लेकिन हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है, रील्स बनाए जा रहे हैं। बुर्क़े का मजाक कोई और नहीं उड़ा रहा है, ख़ुद अपनी ही बच्चियाँ और अपनी ही लड़कियाँ, अपनी ही बहनें उड़ा रही हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद इस पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की वो कहानियाँ हैं जो लिखी जा रही हैं। ये वो वीडियोस हैं जो बेहिस है और बेहिसी का आलम है। इसमें किस्म की नाअहली और हमारी पूरी बेवकूफ़ी पाई जाती है। माँ बाप की तरबियत ना होना, बच्चियों को दी जाने वाली आज़ादी की वो कहानी है जिसमें बहुत भयानक तस्वीर निकल कर के सामने आती है। एक रुख ये है, और दो वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह आप पर टूट पड़ते हैं हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले, एक ऐसे हिंदुत्व सोच रखने वाले लोग, जिसमें हासन की एक कहानी है। ज़बान कन्नड़ा है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं पूरी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। हासन के एक इलाके में होटल है, उस होटल का नाम आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। एक खातून वहाँ पर नाश्ता ख़रीदने के लिए जाती है, और गोमातदरी टिफ़िन नामी इसका जो ओनर है वो उसको वहाँ एक नाश्ता पूछती है। वो नाश्ता पूछने पर जो है वो इनकार कर देता है। कुछ और चीज़ें पूछती है, वो भी ये कहते हुए इनकार कर देता है कि हम मुसलमानों को नाश्ता नहीं देंगे। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल रही होती है तो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ईरान में जो है झगड़े हो रहे हैं, मशरिक़ वस्ता में जंग हो रही है, तुम 20-20 शादियाँ करते हो, 40-40 बच्चे पैदा करते हो। ज़ाहिर सी बात है कि बुर्क़ापोश खातून को गुस्सा आ गया। उसने अपने जवानों को जमा किया, वहाँ के लोगों को, फिर उस जो है होटल के मालिक को आड़े हाथों लेने लगी। मैं शुरुआत की ये चीज़ आपको सुनाता हूँ। कॉपीराइट के चलते हम ज़्यादा देर तक इसको नहीं सुना सकते, लेकिन फर्स्ट में ही कन्नड़ा में उसने क्या कहा ये आपको नज़र आएगा, आप इसको सुन लें। ಇಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತು ನಾ ಇಡ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಪಲಾವ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತು ಪಲಾವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಲಾವ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. 20-20 ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ನೀವು 40 ಜನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಮದ್ವೆಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರು. तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। कर्नाटक में जहाँ पर हुकूमत है कांग्रेस की, वहाँ के एक इलाका है जो है हासन, जिसको जेडीएस का इलाका माना जाता है। वहाँ हिंदुत्व नफ़रत की हालत कहाँ तक पहुँची है, किस हद तक पहुँची है। नाश्ता लेने जाने वाली खातून को किस तरह एक हिंदुत्व दरिंदा गालियाँ देता है और उसको जो है इस्लाम और मज़हब के नाम पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म से तनक़ीद करता है, उसकी ये खुली मिसाल है। अब आइए एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। शायद ये वीडियो देखने के बाद आपका खून खोल जाए, आप कहने लगे कि क्या हो रहा है। ये अब की वीडियो नहीं है, ये वीडियो रमज़ान के महीने की है, और जो लड़की वहाँ पर बैठी हुई है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और वो जो है रोज़े से है। ज़ाहिर सी बात है कि सहरी होती है, रमज़ान के महीने में मुसलमान थका मांदा होता है। ऐसे में मुमकिन है कि थोड़ा वो ड्यूटी के वक्त में आराम कर रही थी या झांप ले रही थी। लेकिन ऐसे में एक दरिंदा सिफत इंसान जो अपने आप को मैनेजर कह रहा है या शायद कंपनी का या किसी आला पोजीशन में, बड़े पोजीशन में है, वो अपनी चप्पल लाता है, चप्पल के ज़रिए से उसके सर पर ठोकता है, फिर कहता है कि देखो चप्पल से मारने से भी नहीं जाग रही है। अब ये वीडियो वायरल हो रही है। ये दरिंदे को क्या अभी तक गिरफ़्तार कर लिया गया है? आखिर इस दरिंदे को यहाँ पर एम्प्लॉय पे कौन रखा है? क्या यही सूरत हाल मुसलमानों के साथ
क्या एक खातून बड़ी मुश्किल से लड़कियां पढ़ती हैं मुसलमानों में और यहाँ तक पहुँचती हैं, नौकरियाँ करती हैं और अपने घर बार को चलाने की परेशानियाँ दूर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये दरिंदे ऑफिस में पाए जाते हैं, ये शैतानी गुंडे और गलीज़ किस्म के लोग यहाँ पाए जाते हैं। तो किस तरह से ख़वातीन अपने आप को महफूज तस्वुर कर सकें किसी दफ्तरों में, ये आप ख्याल करें। ये पूरी कहानी है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त ये सारी तफसीलात एक साथ आएँ तो मैंने सोचा कि क्यों इन ख़बरों को दबाया जाए, क्यों ना इसको सामने लाया जाए, इस दरिंदे के ख़िलाफ़। और हासन में उस जिस ऑर्डिनरी मुस्लिम खातून के साथ उस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, उस दरिंदे के ख़िलाफ़ क्यों ना कार्रवाई हो, क्यों ना इस सिलसिले में आकर एहतिजाज दर्ज किया जाए, क्यों ना इसके ख़िलाफ़ जो है पुलिस थाने में मामले दर्ज करवाए जाएँ। यही सारी कुछ चीज़ें इस वक्त पाई जा रही हैं। ये हिंदुस्तान का वो हकीकी नक्शा है जिस हकीकी नक्शे को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है। अब आइए, त्यौहार का मौसम आ चुका है, अब जो है मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार निकलेंगे, नवरात्रि के जुलूस निकलेंगे, मस्जिदों के सामने जा कर के अपने जो है लोगों को अपने भगवान को खुश करने के बजाय मस्जिद में आकर अल्लाह को खुश करने की कोशिश करेंगे। ऐसा गुज़िश्ता 2014 के बाद से हम लगातार देख रहे हैं। 2014 से पहले हिंदू बासानी अपने मंदिर जाते, जुलूस निकालते, अपनी पूजा पाठ करते और अपने घर जाते। अभी 30 दिन तक मुसलमानों ने जो है रोज़े रखे, इफ्तारी की, नमाज़ पढ़ी, रात में 10-10, 11-11 बजे तक नमाज़ पढ़ी, ईद की। 20 से 30 करोड़ मुसलमानों ने नमाज़ें पढ़ी, लेकिन कहीं हंगामा नहीं हुआ, कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने किसी मंदिर पर रंग नहीं फेंका, किसी ने कुछ नहीं किया। अब यहाँ त्यौहार शुरू हो जाएगा, मस्जिद के सामने आकर के नाच गाने शुरू हो जाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के डीजे में मुसलमानों को कत्ल करने की बातें होंगी। देखिए, वही सूरत हाल है। अब इससे पहले कि मैं आगे बताऊँ कुछ तफसीलात में, मध्य प्रदेश से आने वाली एक वीडियो देख लीजिएगा। रामनवमी के मौके पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मंदिरों के सामने स्टॉल लगते हैं, मेले लगते हैं, मुसलमान वहाँ जा कर के दुकानें लगाते हैं। रमज़ान के पूरे महीने में कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ मुसलमानों के इलाक़ों में गैर मुस्लिमों ने अपने कपड़े बेचे, अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई, अपना सब कुछ हुआ, लेकिन किसी को एतराज़ नहीं हुआ। किसी ने नहीं बताया कि आप हमारे एरिया में आकर के कपड़े ईद के क्यों बेच रहे हैं, क्यों सवैयाँ बेच रहे हैं, क्यों फ्रूट बेच रहे हैं, क्यों इफ्तार का इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन ये दरिंदे पहुंच गए एक मंदिर के सामने और वहां जाकर के मुसलमान को बोल रहे हैं कि भाई आपको हमारी माँ बेटियों को बचाना है आपसे, इसलिए आप दुकानें यहाँ से हटाओ। सुनना चाहते हैं? ये लीजिए, सुन लीजिए। 9 दिन का मतलब निवेदन है आपको। वैसे तो हमारी बहन बेटी आती है, हम उनके संग असुरक्षा नहीं होते हैं, ठीक है? नहीं, यहाँ पे मंदिर प्रांगण के अंदर हम अपनी बहन बेटियों के साथ बख्तियार नहीं होगा। सच्ची देखिए, आप अपने मन से साफ हैं, लेकिन हम अपनी बहन बेटियों के लिए चिंतक भी हैं। बब्बू में हम छुपा नहीं सकते। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपका सम्मान करते हैं, हम एक महिला है, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे निवेदन को स्वीकार करें, ठीक है? अच्छी जवाली तो शायद हिंदू की है, ये तो जाए मुन्ना सौदागर। दीदी, अभी आप लोगों ने देखा होगा, ये यहाँ सामान देखिए, लड़कियों का ये सारा सामान लड़कियों का है, ठीक है? तो ये एक न्योता दिया जाता है, इनके साथ इनके युवा लड़के बैठते हैं, अपने हाथों से चूड़ी करा, इसको अलग करो, क्या करना, चलो चूड़ी करा, कान की बाली, ये अपने हाथों से कान के झुमके पहनाए जाते हैं, अपने हाथों से ये ब्रेसलेट पहनाए जाते हैं, और उनसे कहा जाता है कि जब नया माल आएगा आप हमको नंबर दे दीजिए, जब ये नया माल आएगा हम आपको फोन करके फोटो भेज देंगे। 10 दिन कंटिन्यू उनसे बात करते हैं, 10 दिन के 11वें दिन लव जिहाद शुरू हो जाता है। और आज सबसे बड़ी विडंबना की बात ये है कि हम लोग अपने घर पे अपने दिल में जगह दे रहे हैं उनको लव जिहाद करने के लिए। मुन्ना सौदागर जी, हमारा विषय ये नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये आप अपनी बहन बेटियों को मजार में पहनाइए। यहाँ मंदिर प्रांगण में हमारी बहन बेटियों के साथ अगर लव जिहाद करने का प्रयास न करिए तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल की डेट आपका जितना किराया हो आप हमको वो बताएं, जितनी आपकी यहाँ लागत लगी हो, मेहनत लगी हो, आप हमको वो बताएं, हम उसका भुगतान करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे दुकान नहीं लगाने देंगे। समिति को जितना पैसा देना हो वो मैं दूंगा,
वो ये बालों में ऐसी ये लगाते हैं, लिपस्टिक बताते हैं, कानों में बाली पहनाते हैं, उनको चूड़ियां पहनाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब नया माल आ जाएगा आप उसके लिए हमें नंबर दे दें अपना। मतलब जी आपकी शुरुआत यहीं से हो गई ना। और आज युवा यहाँ पे विशेष समुदाय से कम दिख रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर हमने कहीं लाल बाल वाले, कहीं पीले बाल वाले ऐसे ही युवा देखे हैं। और वही हमारी बहन बेटियों को चूड़ियां पहनाते हैं, कान की टॉपी पहनाते हैं, ब्रेसलेट पहनाते हैं। आप लोगों के माध्यम से हम छतरपुर की जनता से ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या ये सही है? क्या हमारे दिल में हमारा मंदिर, हमारा दिल है और माता का मंदिर ये 9 दिन का मुख्य त्योहार है, तो क्या ये सही है बधर्मी हमारी बहन बेटियों को, हम अपनी बहन बेटियों को घर से मंदिर पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर बधर्मी हमारी बहन बेटियों को अपने हाथ से चूड़ी पहना रहे हैं, कान में बाले पहना रहे हैं, उनका नंबर ले रहे हैं। तो क्या है, मैं छतरपुर की जनता से पूछता हूँ कि भाई अगल बगल के घरों में कोई विरोध नहीं लेना चाहता, हमारे भी संबंध है समिति वालों से, लेकिन संबंध से पहले मुझे अपना सनातन प्यारा है और मैं अपने सनातन के लिए अपनी बहन बेटियों के साथ अगर ऐसा कृत्य होता है तो मैं नहीं देख पाऊंगा। अगर मेरी स्वयं की माँ से भी अगर संबंध खराब होते हो या मुझे उनका विरोध करना पड़े सनातन के प्रति, तो मैं उनका विरोध करूंगा। कुछ दुकानदार है, पहले भी हमने कई बार यहाँ भी खबर नहीं, कुछ मोमलेस लड़की यहाँ वहाँ बैठ जाते थे, मंदिरों के अंदर बैठते हैं, मंदिरों के अंदर हमारी बहन बेटियों को देखने बैठते हैं। वही जैसे ये एक दुकानदार है, ये 4 लड़कों को बुलाते हैं कि यहाँ बैठो ना, हमारी दुकान के अंदर बैठो भाई, नहीं तो यहाँ के धर्मियों का काम क्या है मंदिर के अंदर? भाई अगर आपके रोजा चल रहे हैं, आप बाजार के बाहर दुकान लगाइए ना, या कोई ईद पर नमाज पढ़ने नहीं जाता है, क्या वहाँ भीड़ नहीं हो सकती? सुनियोजित षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। ये वीडियो छतरपुर की है, 19 मार्च की है और जो दरिंदा इस वक्त मुसलमान को रोक रहा है वो हिंदू जोड़ो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है और जगह जगह जा रहा है, मुसलमानों से कह रहा है कि आप अपनी दुकानें हटा दो, आप लोग लव जिहाद करते हो। ये इस वक्त नफ़रत की वो हालात हैं नाज़रीन गिरामी जो पूरे भारत में अलग अलग पैमाने पर इस वक्त जो है माहौल बनाया जा रहा है। इन दरिंदों के ख़िलाफ़ चूँकि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये दरिंदे इसीलिए जो है अपनी गुंडागर्दी में, दादागिरी में अपनी इंतहा पार करते चले जा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। अब भारत को हिंदुत्व दहशतगर्दों से बचाने की ज़रूरत है और इसके लिए कानून का सहारा लेना होगा, इंतज़ामिया का सहारा लेना होगा, अदालतों का सहारा लेना होगा। बसूरत दीगर ये गुंडागर्दियाँ और दहशतगर्दियाँ अपने उरूज को पहुँचती चली जाएंगी और पूरे भारत में आग लगाएंगी। नाज़रीन गिरामी, पैनिक वाला माहौल है इस वक्त। पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से दिल्ली के बस स्टॉलों में और बस अड्डों में इस वक्त इतनी बड़ी भीड़ देख रहे हैं। ये आज ताज़ा आने वाली वीडियो है दिल्ली की, जहां के बस अड्डे पर गुड़गांव से जो मुख्तलिफ यूपी, बिहार और मुख्तलिफ आसपास के इलाक़ों से जो मज़दूर तबका है वो वापस अपने घर जा रहा है। वजह उसकी ये है कि पार्लियामेंट में पीएम मोदी ने इस वक्त मशरिक़ वस्ता में चल रही जंग के हवाले से कुछ बयान देते हुए कह दिया कि कोरोना जैसे माहौल बन सकता है। यानी कोरोना जैसा माहौल मतलब ये है कि एक बार फिर लॉकडाउन जैसी सूरत हाल बन सकती है। अब जाहिर सी बात है कि दिल्ली में सबसे बड़ा तबका वो बैरूनी रियासतों से या आसपास के देहातों से आने वाला है जो रोज़मर्रा मजदूरी करता है। अब उन्होंने सोचा कि कहाँ यहाँ फंस जाएं। मोदी ने इससे पहले भी कहा था, तब भी इसी तरह हुआ था, अभी भी आगे हो सकता है। जबकि आज जो है इस सिलसिले में दीगर बीजेपी लीडरान ने साफ और वाज़ेह कह दिया है कि ऐसा माहौल नहीं है। ये मिसाल देने के लिए समझाया गया था, इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भारत है, यहाँ झूठ सुना जाता है, सच पर पर्दा डाला जाता है। उसकी एक और मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ। आजकल जो है आपको पेट्रोल पंपों में एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। कोई 25 लीटर पेट्रोल पूछ रहा है, कोई कैन उठा करके आ रहा है, कोई जो है अपने पानी भरने की पूरी टैंक ही लेकर के आ रहा है ताकि वो पेट्रोल या डीजल भर करके रखें। आगे जाकर की सूरत हाल भयानक हो जाएगी। अब जो सूरत हाल बन रही है हमारी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ये 24 और 48 घंटों के दरमियान में आने वाले मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की ये वीडियोस हैं जो पेट्रोल पंप में पैनिक का माहौल बना करके सूरत हाल बस से बदतर बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये बात मान करके चलना होगा
کہ اس وقت جو ہے مشرق وسطیٰ میں یعنی ایران اور امریکہ اور دیگر ممالک کے درمیان ہونے والی جنگ آبنائے ہرمز کو بند کیے جانے کے بعد سے اس کے اثرات پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ پورے کے پورے دنیا میں پانے جا رہے ہیں، اور بالخصوص ایشین ممالک اور آبنائے ہرمز سے عرب ممالک سے آنے والے ڈیزل، پیٹرول اور دیگر چیزوں کو آئل گیس ٹینکر وغیرہ نہ آنے کی وجہ سے صورتحال مزید بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، نمو 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 نمو، ہر ہر موتی گھر گھر موتی، ہر ہر موتی گھر گھر موتی، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، نمو 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 نمو، ہر ہر موتی گھر گھر موتی، ہر ہر موتی گھر گھر موتی، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، نمو 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 نمو، ہر ہر موتی گھر گھر موتی، ہر ہر موتی گھر گھر موتی، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، نمو 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 نمو، چل دے وہ جے مہاراشٹر، چل دے آتے۔ بنگلہ دیش کی یہ ویڈیو اس وقت آ رہی ہے، پیٹرول کے لیے کتنی دور تک گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اس کا نظارہ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں۔ ایشین ممالک میں بالخصوص اس وقت صورتحال بہت بھیانک بنی ہوئی ہے، پیٹرول، گیس اور ڈیزل اور دیگر بہت ساری چیزوں کو لے کر کے۔ ناظرین میں آئیے دو اور اہم ترین خبروں پر میں جو اس وقت مشرق وسطیٰ کے جنگ سے جڑی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی۔ ایران نے ایک بار پھر سبمرین انٹرنیٹ کیبلز کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے، اس لیے کہ ایک طرف امریکہ کی جانب سے مختلف جو ہے بحری بیڑوں کو، اور وہ بحری بیڑے جس پر میزائل ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے، وہ جو ہے آبنائے ہرمز کی جانب لے جانے کی خبریں سامنے آنے کے دوران ایک بار پھر مشتبہ خامنہ ای کے حوالے سے ایران نے اس وقت بتایا ہے کہ اگر کسی بھی طرح کے آبنائے ہرمز میں ایران کو چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی گئی تو ہمارا اگلا ٹارگٹ سبمرین انٹرنیٹ کیبلز کو کیا جائے گا۔ اب ناظرین کرام، یہ کیبلز اتنی اہمیت کے حامل کیوں ہیں؟ اس کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 95 سے 97% گلوبل ڈیٹا اسی پر ہے۔ اس کو آسانی سے سمجھنا پڑتا ہے کہ آپ ہیں ہندوستانی اور آپ جا رہے ہیں جرمنی، اور جرمنی میں آپ کا پاسپورٹ اسکین ہو رہا ہے، تو جیسے ہی پاسپورٹ اسکین ہوگا آپ کے ہندوستان کا سارا ڈیٹا وہاں پر نظر آ جائے گا۔ اسی طرح کے بہت سارے مختلف قسم کے ڈیٹا اور عالمی بینک کا ڈیٹا اسی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملک کو کنیکٹ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک ملک میں موجود ایک انسان دوسرے ملک میں جب جاتا ہے تو اس کی ساری ہسٹری اس کے پاس پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ یہاں سے کسی دیگر ملک میں جڑا ہوا ہے، یا مشرق وسطیٰ میں ہو یا کائنات کے کسی بھی ملک میں، تو اسی سے جڑی ہوئی چیزیں جو ہے اس کیبلوں کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہیں، اور ہر ملک کا کنیکشن ایک دوسرے سے اسی کیبل کے ذریعے سے ہوتا ہے، بالخصوص جو ہے انسانی ڈیٹا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کو اگر نقصان پہنچایا گیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے کس قدر بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اب اگلا ٹارگٹ ایران اسی کو بنانے کی دھمکی دی ہے، اگر امریکہ نے کسی طرح کی بھی شرارت کی آبنائے ہرمز میں اپنے چھوٹے چھوٹے میزائل رکھنے والے بحری بیڑوں کو بھیج کر کے ایران پر حملہ کرنے کی یا اس کے آس پاس کے علاقے میں حملہ کرنے کی۔ دوسری ایک ویڈیو اس وقت سامنے آئے ناظرین گرامی، وہ رشیا کی ہے۔ رشیا نے اس وقت جو ہے کئی کنٹینر اور بہت سارے بڑے بڑے جہاز ایران کے لیے جو ہے وہ امدادی سامان فراہم کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایران میں بھی اس وقت بڑی تباہی مچی ہے، بالخصوص تہران میں، اور بڑے بڑے حملے کیے گئے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے۔ تو ایسے میں مختلف قسم کی امدادی سامان درکار ہوتے ہیں، جس طرح سے چائنا پوری طرح سے جو ہے وہ دفاعی جنگی ساز و سامان فراہم کر رہا ہے، دیگر چیزوں کو فراہم رشیا کر رہا ہے۔ یہ خبریں اتھینٹک طور پر مل رہی ہیں۔ مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔